will practice two pointers question, all the two pointer question in class itself. That's why I will take 3-4 class on two pointers only. So don't worry. प्रैक्टिस से, सिंटैक्स प्रैक्टिस से ही याद होगा, कोई ऑप्शन नहीं है. सिंटैक्स याद करने के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. सिंटैक्स याद नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का सिंटैक्स मुश्किल लग रहा है, 50 बार कॉपी में लिख लो. लाइक 51 टाइम याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी. दैट्स व्हाट माय टिप इज है. ठीक है, कूल. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मैनी ऑफ यू टोल्ड मी टू यूज द नोटपैड. नोटपैड कहीं भी स्टक हो, लेट मी नो. मैं नोटपैड इसलिए यूज नहीं कर रही थी इतनी क्लासेस में, क्योंकि इट वाज गेटिंग स्टक. कूल, राइट. सो let's start with basic pointer. So if if we were not doing, if we were like not using Python in our course, we were using C++ or something like that. So there is a different concept of pointers that you need not to know. But to give you a little context, pointers in C++ are used to store memory address of a variable. Now, to give you a little context, what let's say I say a is equal to 10, right? It will be stored somewhere in my memory, right? So in the memory, it would have a reference number or memory address, something like 101, and this a would be stored in cell 101 where value is 10, right? So pointers in CPP, C++, that I mean to say, stores this value 101. Let's say I say star a, so it will give me reference value as 101, right? That's all you need to know about the pointers, because we don't have pointers in Python, right? Right. So what is pointer in context of Python? Screen is not stuck, right? Let me add people on stage. Yeah. So okay. So in C++, major thing you need to remember is pointer store memory address of a variable, right? But what about Python? Do we need pointers in Python? No. So why we say we have two pointer technique in Python, and what basically is pointer? So pointer is equal to iterator in Python in a loop, right? What do I mean when I say this? Let's say this is my list 0, 1, 2, 3, 4. The variable telling me position of this 0 in this list is called pointer.
Again, what? The variable that is telling me position of a item in list is called pointer. Cool. Any doubts still here? Right? Let's say I have given a list. Okay. I keep one pointer here, another pointer here, and then iterate over the loop and try to print the values. Just I'm trying to print the values of my I starting with 0 and going till n, that is length of list, and my j starting from 1 and going till n, right? So how would I write the code for this? For I in range length of my list, print I, right? Another loop I will say for j in minus 1. Okay. For j in range from 1 to length of list and print j. Can you guys try this code on your compiler? Will you try to print both of these values? Yeah, right. What are we saying for no? Acha, okay. Everything is good, right? Yeah. Just try to. Let me. Okay. Just try to print these things in your compiler. Like you have a list and you want to print two things with the two iterator, one starting from 0, one starting from j. 1. Can you try this? Yeah, in Python, pointer concept is similar to index. Send me the screenshot of just printing these both lists if you can. No, I is the index, I is the pointer, not the value that is stored in the A. A stores the value of num_sci. It's not the pointer. Ma'am, this is my first session. It's really go to some good. Yeah, yeah, you can go ahead with some. Hello, Who's hello. this? Yeah, Aditya, please go ahead. Yes, ma'am. I want to ask a doubt that I do usually DSA in Java. So should I continue doing DSA in Java or should I learn Python and switch to No, Python? no, 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 no. Continue doing it in Java. And ma'am, the coding labs you are putting does not have support for Java. They are I dedicated for Python. I will select for all the languages from the next time. Don't worry about that.
Okay, ma'am. Thank you. Okay. Guys, did you try this? Try printing the values. Send me the screenshot. And the people who have done it with the two for loops, can you try printing both the values I and j, again I starting from 0 and j starting from 1, using one for loop? Try doing that. Combine these two for loops into a single one, and the value should be printed like, in the first iteration it should print 0 comma 1, in the second iteration it should print 1 comma 2, in the third iteration it should print 2 comma 3, in the fourth iteration it should print 3 comma 4, then 4 comma 5, then 5 comma 6. The output should come like this when you try to print it in a single row. Try to do that. No, I and A are not referencing to the same thing. A is the value of, uh, like, I is the position, A is the value. That's the difference. I want you to keep two variables, guys, I and j. Ashutosh, don't use I comma I plus 1. Use second pointer as well. Keep j as the second iterator. The code is right, but write j is equal to this and then try to. Uh, yeah, it works. The code is correct, but can you do something like that, Satya? Like, j is equal to 0, initialize it before the loop, and then do j plus 1. I think Shruti's code is correct. Okay, so let me try to do it now. Let's say I have a list num saying 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Right, I keep I equals 0 for another iterator is j in range list num. Try printing I comma j and do I plus equal 1, right? Acha, okay, length of from 1. What it's saying, invalid syntax.
ज़्यादा लगा दिए क्या मैंने ये? What's the issue? J in range. क्या गलती कर रही हूँ यार मैं? For J in range. Length of list num. अच्छा, okay, I don't need these parentheses. Oh my god. अभी भी invalid है. For J in range. 1 comma. Okay, 1. This is missing. Cool. So it prints 0 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 4. Also, I started I with 0, 0 ra in the first iteration. So what is the dry run? Let's try to dry run the code on this simpler example. Dry run, right? So how do I write? Okay, I need you guys to do a dry run. Try to write in your notebook and dry run karo us code ko. Like try to dry run. पूरा proper लिखना, like first iteration the value of I was this, the j was this, in the second iteration the value of I was this, j was this, and so on, right? Try to do that. Take 2 minutes, like 2 minutes are enough, I guess. Because I told Suraj that you need to start 2 pointers, one starting from 0, another starting from 1. So I 0 है, ये मैंने mention किया था question में. uh, J is equal to no. Harsh, you need to start J one iterator from 0, another from 1. You are starting both from 0. Try to run the code. Copy में लिखो, like first iteration and value of ij, second iteration value of ij, third iteration value of ij. We are taking values of of the list on which, so I and j are positions. Like I is equal to 0, that means 0th position. J is equal to 1, that is first position in the list. And what's the value of the first position in the list? It's 1. Okay, to make it more if you are getting confused between this, let's do it like this. Right? Oh my god, okay. Cool. Now I will help you with the Suraj. Let's other do the dry run first.
Take out your copy and pen, guys, and try and करो notebook पे. Sweet zero. Yeah. Yeah, your approach is right, Ashmeet. I will repeat it and more. Let's have the try run first and try it yourself. Like me repeating the question again and again won't help you. I need every one of you to try run this. Like I only see replies from 2, 3, 4 students and other 180 says कि class में कुछ समझ नहीं आया. तो try run करो. Like it's a very easy code. Copy pen उठाओ, try run करो. Send me the screenshot. I'm waiting. No worries, Hari. You can catch up later with the recording. Don't worry. Yeah, cool. So, I think many of you are aware we are increasing the J iterator. Now you will get to know Hari when I will try that. Give me a second. Please hold for a second. I'm getting it. Yeah, send Jairan in the chat. Okay, let me also try for you guys. So, what is Trident? Trident क्या है? You need to go code line by line.
of the code and write values of all the variables in the code at that point, right? So what was my code was? I have a list. Here I have apple, banana, cherry, watermelon, papaya, and grapes, right? Again, I'm writing position. It's on zeroth position, it's on one, second, third, fourth, and fifth. Cool. Code क्या था? What did I write? I initialized one variable or pointer or iterator from zero, another variable j in range. कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे मैम इसकी वैल्यू j की कैसे बढ़ती है? This range function every time increase the j's value by one. From 1 to length of this list, let's say num or fruits maybe, right? Fruits, right? And what I'm doing, I'm printing fruits at ith position, comma, fruits at jth position. एंड क्योंकि जे का इंक्रीमेंट ये वाला चीज हैंडल कर रहा है but I nobody is handling I so that I will do myself and will increase by one every time, right? Now if I try to dry run, so I write it like this: first iteration, before running these lines my value of I was 0, j was 1. Now I came here, I printed the value which was apple comma banana. So then I increased my I by 1. So now after this I ka value became 1. In second iteration, I was 1 क्योंकि increase कर दिया था हमने. J is again 2. My for loop is handling that. Now I print fruits at put ith position, which is 1. What's that? Oh, give me a second, hang हो गया. Okay. Yeah. So I at 1, J at 2, and now I need to print my fruits at ith position, which is 1. So fruits at first position is banana, so it will print banana here. Comma, now fruits at second position, which is cherry. So it prints cherry here and increase I by 1. So I's value is 2. In the third iteration, my I is 2, J is 3. What it will print? It will print cherry, comma, watermelon.
समझ आया ना, चेरी कॉमा वाटरमेलन कैसे प्रिंट हुआ? फ्रूट्स, fruit value at second position, fruit value at third position, increase I by 1, right? Sorry, 3 हो जाएगा ये. Fourth iteration, I equal 4, I equal 3, J equal 4. It will print watermelon, comma, papaya. How watermelon, comma, papaya? Watermelon is fruits value at position 3. Papaya is fruits value at position 4. Increase I by 1, 4. In the fifth iteration, my I's value is 4. J's value is 5. It will print papaya, comma, grapes. And now it will increase I by 1, but this is my last iteration because I want to run it till length of fruits, right? From 1 to length of fruits, which is 6 minus 1, 5 times. So the loop runs 5 times. And this is what is printed. एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है कि ड्राई रन कैसे होता है, मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो पूछ लो. क्योंकि मैं इसके बाद लाइक इन एवरी क्वेश्चन हम ड्राई रन करेंगे और ड्राई रन समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आएगी. तो एनी डाउट्स इन ड्राई रन जस्ट आस्क मी आउट कि नहीं अभी भी समझ नहीं आया ड्राई रन कैसे हुआ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो आस्क मी. नीरज हम और प्रैक्टिस कर लेंगे नेस्टेड लूप्स का, डोंट वरी. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. हमने आई की रेंज सेलेक्ट कर ली है 1 टू लेंथ. जे को भी तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, जीरो. सो कोड में क्या हो रहा है? कोड में in range length of fruit is exclusive, so do not use length of fruit plus 1. No, because okay, तो for loop कैसे काम कर रहा है? Yes, this is comparatively easy. Okay, one by one, one by one, one by one. J increases with range. ये for loop में जे इंक्रीज होता है. इट्स बाय डिफॉल्ट. यू गाइस नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट. अगर तुम आइट्रेशन कर रहे हो फॉर आई इन रेंज लेट्स से 5 टाइम्स, तो वो ऑटोमेटिकली लूप को 5 बार चलाएगा एंड देन इट विल इंक्रीज जे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो हमने एक वेरिएबल हर्ष कोड के बाहर रखा था विच इज आई और जे वट एवर यू आर कीपिंग, एंड आई एम इंक्रीमेंटिंग इट इनसाइड माई लूप, राइट? Yeah, it will show error, Suraj. Try to focus on the approach, not the syntax error. नहीं अभिषेक, रेंज वो लेंथ लेगा 6 क्योंकि 0 से 5 तक गैस लेंथ लेगा 6, बट हमें लूप को 5 बार चलाना है, तो वैसे वी नीड टू सी कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू रन द लूप, तो उसको वैसे देखो. या फॉर लूप इट इंक्रीजेस इटसेल्फ. व्हाइल लूप को हमें मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ता है. तभी मैंने उस दिन बोला था कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस होता है.
फॉर लूप हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि हमें लूप कितनी बार लगाना है। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में पता था कि मुझे लेंथ तक लूप लगाना है, तो मैंने फॉर लूप यूज किया। व्हाइल लूप हम वहां लगाते हैं जहां पे वी ओनली नो द बेस कंडीशन, कि इस कंडीशन के फॉल्स होते ही हम लूप को रोक देंगे, राइट? ओके, तो डाउट है किसी को इसमें? आई थिंक इट वाज इजियर ड्राई रन, तो everybody is able to do it. Now everybody actually knows कि yes, 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 this statement is increasing the value of J Weber. वही तो हर्ष, हमें J को भी लेंथ तक ही लेके जाना है आइडियली। दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन ड्राई रन कि मुझे मेरे J को भी एक्चुअली लेंथ तक ही लेके जाना है। उसके लिए भी मुझे 5 ही बार आइटरेशन चलाने हैं, तभी आई मर्ज इट इन अ सिंगल लूप। अगर मुझे J को अलग, J का लूप मान लो मुझे 6 बार चलाना होता है, लेट्स से लेंथ प्लस 1 तक चलाना होता, एंड I का लूप मुझे सिर्फ लेंथ तक ही चलाना, तो मैं 2 अलग-अलग लूप्स लगाती। व्हाई आई गिव यू द एक्सरसाइज टू क्रिएट 2 लूप्स फर्स्ट देन मर्ज इट, वो इसलिए दिया ताकि तुम लोगों को समझ आए। तो या इट्स करेक्ट अनमोल। अ, ठीक है, कूल। तो अब थोड़ा-सा ना 2 पॉइंटर का थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो हमने जो भी इस कोड में किया, सॉर्ट ऑफ हमने 2 पॉइंटर लगा लिया है। कूल। 2 पॉइंटर को ड्राई रन भी कर लिया है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि हार्ड क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं? और दीपा, हम लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंटर्स आर नथिंग इन पाइथन, इट्स जस्ट द इंडेक्स वेरिएबल, कुछ नहीं है पाइथन में पॉइंटर्स। अपने दिमाग से निकाल दो, इट इज जस्ट अ वेरिएबल टू आइटरेट ओवर द लूप। ठीक है, तो अब हम, तो ये जो भी तुमने एक्सरसाइज करी अभी इस कोड में, इसमें व्हाट यू डिड, यू यूज्ड 2 पॉइंटर्स, और I would say to position index in a loop, right? अब एग्जैक्टली 2 पॉइंटर यही होता है, बट what is the difference? What's the major difference, right? What's the core idea? Why do we use it? Why we need 2 pointers? So 2 pointers क्यों चाहिए होता है? नेस्टेड लूप को अवॉइड करने के लिए। अवॉइड दिस, राइट? आई विल टेल यू अ क्वेश्चन, लीड कोड का एक क्वेश्चन जिसको हम ब्रूट फोर्स से करेंगे। ब्रूट फोर्स इज नेस्टेड लूप से करेंगे, एंड देन ओके ओके गाइस, वन मोर थिंग, जैसे जैसे हम इस चीज में डीप डाउन जाते जाएंगे, आई विल टेक योर वन क्लास ऑन व्हाट इज ब्रूट फोर्स, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ज्यादा गंदी हो रही है ना मेरी हैंडराइटिंग, एक मिनट। राइट, तो हम ना मे बी लिस्ट की और एल्गो पढ़ने से पहले एक क्लास इस पे कर लेते हैं, एंड मे बी इन द नेक्स्ट क्लास में हम पूरा 2 घंटा यही डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज ब्रूट फोर्स, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम कुछ कुछ कोड्स का
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी विल फाइंड एंड सी कि व्हाट हैपेंस, राइट? तो अभी से बता रही हूँ, इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर यू गाइस कि अगली क्लास में हम ये करेंगे। वी विल स्टॉप दिस एल्गो वाला थिंग फर्स्ट एंड वी विल लर्न दिस क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर पार्ट ऑफ डीएसए। जब भी इंटरव्यू में यू विल बी गिवन a question, you need to tell the time complexity and space complexity of that code always, right? Okay, ठीक है। तो why we need two pointers? Nested loop को we need to avoid. We basically uh, need to avoid traditional methods of coding. So this why algorithms come into the picture to basically stand out, right? That's why this two pointer or many algorithms are there, Cadence algorithm, and so many of that are there. Why we use them? To basically stand out, to basically decrease our time complexity, to make our code faster. That's the reason. ठीक है? ओके, सो टू पॉइंटर्स का कोर आइडिया को ऐसे सोचो कि लेट्स से यू नीड टू फाइंड वन पर्सन इन अ रो, इन अ लाइन, ठीक है? तो एफिशिएंट वे क्या होगा? एक लाइन है, मान लो 10 लोगों की लाइन है, उसमें कहीं शिवाली खड़ी है एंड यू नीड टू फाइंड कि शिवाली कहाँ है, राइट? तो व्हाट वुड बी द एफिशिएंट वे टू डू इट, राइट? या तो तुम एक बंदा लगा दो जो यहाँ से चालू करे, इसको देखे, इसको देखे, इसको देखे, इसको देखे, इसको देखे और यहाँ पे पहुंच जाए और बोले कि ये यहाँ शिवाली इस साथ 1 2 3 4 5th नंबर पे शिवाली खड़ी है, राइट? बट क्या कोई फास्टर तरीका, लेट्स से शिवाली यहाँ खड़ी होती तब 8th पोजीशन पे होती, यहाँ नहीं है, शिवाली इज हेयर, तो क्या होता? तो इसको 8 बार जाना पड़ता। अगर if if I start one person from here, another from here, एक ऐसे जाए in this direction, हैंग हो गया यार फिर से, गिव मी अ सेकंड। समझ आ जाएगा यश की टू पॉइंटर कैसे यूज करना है। आई थिंक हाँ, ये टू पॉइंटर का ही क्वेश्चन है, नॉट श्योर। मैक्सिमम सम इन अ स्ट्रिंग बोला था मैंने। ठीक है, इसको देखते हैं, आई एम नॉट नॉट श्योर, पता नहीं। You will get to know गाइस कि कैसे कैसे टू पॉइंटर को कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन में टू पॉइंटर लगेगा, पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ। अभी फुल दिख रही है मेरी स्क्रीन, राइट? ठीक है, मैंने एक बंदे को अ पर्सन लाइक अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट एंड एंड अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द राइट एक्सट्रीम एंड। आई टेल हिम टू गो इन द राइट डायरेक्शन। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, उसको मैं बोलती हूँ कि भाई
राइट में जा, राइट वाले बंदे को बोलती हूँ तू लेफ्ट में जा, ढूँढना चालू करो एंड दोनों मिडल में मिल लेना। तो 5 पॉसिबिलिटी ये चेक करेगा, 5 पॉसिबिलिटी ये चेक करेगा। जैसे ही मिल जाएगा आई विल ब्रेक। तो डू यू थिंक कि टाइम बच रहा है इससे? से येस और नो? What I'm ignoring? What didn't you understand, Shiva? I don't know. Like मैं पूरा इंग्लिश नहीं यूज कर सकती क्लास में, पूरा हिंदी नहीं यूज कर सकती। तुम लोगों को किसी को हिंदी समझ आता है, किसी को इंग्लिश समझ आता है। ऑल्सो मेरा फ्लो टूटता है बार बार। तो डोंट डू दिस। मतलब मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ जहां तक मेरे को करना है, बेसिक मोटिव समझ आ रहा है मेरे डायग्राम से, लाइक व्हाट्स हैपनिंग। कूल। I think every one of you agrees कि if I keep two person, one from right, another from one from left, another from right, and tell them to move in opposite direction and find Shivali, so it will save my time rather than keeping one person, right? I think that's everybody of everyone of you agrees, right? So this is what our two-pointer approach is. Like questions should look like this. There is a list. Either you need to find something, either you need to move something. ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे तुम्हें टू पॉइंटर अप्रोच यूज करना है, राइट? नाउ हाउ डू यू अप्लाई टू पॉइंटर इन योर कोड, राइट? There are three things that you need to answer. First, initialize your pointers. Like from where it would start. If I say I have two pointer I comma j, तो I को कहाँ से start करना है, j को कहाँ से start करना है? This is the first thing that you need to know, right? Okay, now what are the possibilities that you can think कि कहाँ कहाँ से start हो सकता है ऐसे questions में? पॉइंटर कहाँ कहाँ से start होता है? The first possibility is one pointer here on 0th index and another on the right extreme, that is length minus 1. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये। सेकंड पॉसिबिलिटी है वन पॉइंटर हेयर एंड वन उसके आगे ही जस्ट वन इंक्रीमेंटेड वैल्यू, सो आई इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1 या i प्लस 1, राइट? So these are called same position. Shiva, you need to tell me what exactly you didn't understand. I clearly told like I'm standing in the line of 10 people. How, what is the efficient way to find me quickly? So I just told ki I will have one person in the start, another person at the end, and then I will ask person on the left to move in right direction, person on the right in the left direction, and try to find me. So this is the more efficient way of finding me in the line. If I will only have one person, so agar मान लो I'm standing at the 8th position, then that person need to go 8 times. But if I will have two people, one at the right hand, one at the left hand, so in this
second iteration only I will find Shivali. Do you agree on this point? Right? हाँ, इतना ही बोला है अभी nothing else. Okay, so first was to keep one pointer at the left extreme, another at right extreme, and move it move in the left direction, I in the right direction. This is now move both the pointer in the same direction. It's just that कि एक pointer तुमने you started from 0th position and another by incremented one position. So let's say I is equal to 0, so j is equal to 1 always. So I and j में position difference जो होगा वो हमेशा 1 होगा. It can be 2, 3, you need to think, right? It's just it's moving in the same direction pointer, opposite direction pointers, right? There can be a case where we have two lists, one pointer in first list, second pointer in second list. This is the third case. Two pointers, two lists, but one loop, right? My I is here, J is here. Both are moving in this direction, but this is running on length of J, length of list 1, and this is running on length of list 2, right? Step 1 is clear. नहीं यश सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा मैं बता दूंगी जिस क्वेश्चन में वी डोंट रिक्वायर टू पॉइंटर मैं बता दूंगी डोंट वरी वी विल गेट टू नो इवेंचुअली कि किस क्वेश्चन में टू पॉइंटर लगाना है किस में नहीं लगाना ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है first point is you need to initialize your pointer you need to think you need to have left or right pointer you have pointer so what's the first point is? First point is you need to initialize your pointers. You need to decide either you have this left or right pointers, either you will have pointers at the same position in the same direction, but just there would be some difference between them, like one by there would be the another pointer would be greater by one value, two value, three value. Or the third point is you will have two lists or two data structures maybe. One pointer is in the one data structure and another pointer is in another data structure. Cool? No, it is not. We will do a question, Aman. Okay, how we will use pointers on two different lists. We will do a question. अभी के लिए you guys just understand कि ऐसा होता है, right? Pointer sorted list के लिए it's not necessary. आशुतोष मैंने ये नहीं बोला कि सारे क्वेश्चंस के नेस्टेड लूप हम टू पॉइंटर्स से रिमूव कर सकते हैं. I said we have some examples where we can avoid nested loop using two pointers. टू पॉइंटर्स को भगवान मत मानो कि सारे क्वेश्चन टू पॉइंटर्स से हो जाएंगे. It is just one of the approach to solve a question, right? और कहाँ पे टू पॉइंटर लगाना है पता चल जाएगा हमें थोड़ा सा शांत रहो. नो नो आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन अभी स्टक नहीं हो समझो पहले टू पॉइंटर होता क्या है फिर कहाँ लगाना है वो धीरे धीरे सीख जाएंगे डोंट वरी स्क्रीन स्टक
पे हंसने वाली क्या बात है? When they move to opposite direction, when they move in same direction. Anmol, your question is not clear, but it seems easy. Okay, it might seem easy to you because you haven't. What is sorted and unsorted list? So if my list is saying 1, 2, 3, 4, 5, it's sorted. Like it's uh in increasing order. यार स्लाइडिंग विंडो पे पहुंच गए हैं क्या हम? जो समझा रही हूँ उसको समझ लो ना. ऑल्सो अनसॉर्टेड लिस्ट सूरज होता है 5, 4, 2, 3, 1, तो ये अनसॉर्टेड है. कूल. यहाँ तक समझ आया ना कि टू पॉइंटर में दो दो पॉइंटर की पोजीशन डिसाइड करने के कहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है उतना यू नीड टू डिसाइड एज द फर्स्ट स्टेप, जैसा तुमने पिछले क्वेश्चन में किया. पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारे पोजीशन इंडेक्स फ्रॉम वेयर यू नीड टू स्टार्ट योर पोजीशन इंडेक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्वेश्चन itself, but when you try to approach the two pointer question you need to think it yourself. ठीक है. कूल. चलो. Clear, clear, clear. So let's move ahead. Now, the second point is after you initialize, now you need to know how you will move your pointer. ये इस पे मैंने बात कर लिया already, but I will tell you again. Either in the opposite direction, which is called as converging pointer. अच्छा, हम ये करेंगे कैसे कोड में, ये मैं बता दूंगी तुम लोगों को. लाइक अगर तुमने एक पॉइंटर यहाँ पे रखा है, इसको ऐसे चला रहे हो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा है, इसको इन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, लेफ्ट साइड लेके आ रहे हो, तो हाउ वी डू इट इन द कोड मैं बता दूंगी. बट ये समझ आया ना, एक पॉइंटर इस एंड में, एक पॉइंटर इस एंड में, देन यू नीड टू मूव इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? यू कैन नॉट मूव. अब जे ऑलरेडी तुम एंड से स्टार्ट करो, उसको आगे ले जाके क्या करोगे? कॉमन सेंस, राइट? तो converging direction, and when you have these type of pointer जहाँ पे there is a difference between two pointers but they are at same position, same yeah, you can say same position. What I mean by same position is at the start or at the end. Let's say my one pointer is here, another is here, then you will move both the pointer in the same direction and you call it slow and fast pointer moving in same direction. राइट, तो ये वाला स्टेप बहुत इजी, लाइक इट्स वेरी इजी इफ यू नो व्हाट टाइप ऑफ पॉइंटर यू चोज. लेफ्ट राइट वाला चूज किया तो कन्वर्जिंग डायरेक्शन में चला देना, ये वाला चूज किया तो सेम डायरेक्शन में चला देना, तो सेकंड स्टेप बहुत इजी है, लाइक इट्स इजी. ठीक है. ये टू लिस्ट वाला जो एग्जांपल है, इसमें कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे इसको हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे. यूजुअली इट्स इन द सेम डायरेक्शन, बट या वी विल सी. या राइट वैभव. तो समझ आ गया सेकंड स्टेप क्या है. थर्ड स्टेप है, the third step is till where we need to run the loop and what if I need to check a condition to stop. अच्छा, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, लाइक इस स्टेटमेंट को समझने के लिए. मेरी जो फ्रूट लिस्ट थी ना, एप्पल, बनाना, एप्पल,
ऑरेंज, ग्रेप्स, राइट? मुझे क्या करना है? टू पॉइंटर लगाना है. Use two pointers and only print the values which are not repeating. Can we do it? टू पॉइंटर अप्रोच लगानी है. सोचो क्या पॉइंटर लोगे, सोचो कहाँ तक लूप चलाओगे, किस डायरेक्शन में चलाओगे. एंड टू प्रिंट दीज वैल्यूज यू नीड टू थिंक सिर्फ एक कंडीशन, राइट? सोचो, लेट 5 मिनट सोचो. नहीं नहीं, सेट का यूज नहीं कर सकते. जस्ट नीड टू यूज लिस्ट एंड you just need to use list and your two pointers. हाँ, very easy. Fruit is not equal to apple. हाँ, करेक्ट करेक्ट. ऑब्वियसली इसमें टू पॉइंटर नहीं चाहिए, सिंगल लूप लगा के हो जाएगा. बट यू नीड टू यूज टू पॉइंटर्स. Okay, if I will say I will start my one pointer from here, another from here, right? और मैं कोड लिखती हूँ for j in range 1 comma length of fruits. Okay, I will just say print the unique values in the list. ठीक है, एप्पल भी प्रिंट करना है हमें, राइट? तो मैं लिखती हूँ इफ fruits of I is not equal to fruits of J, then do I plus 1 and print my fruits J. राइट? सही लिखा है मैंने. ऐसे चालू हुआ i+1 से हुआ, i को i+1 कर दिया एंड देन प्रिंट करा हमारा फ्रूट्स J which is apple, करेक्ट. बनाना हो गया J. नो, इट वोंट वर्क. और अगर मैंने इक्वल टू डाला, गिव मी 2 सेकेंड्स, मैं ट्राई रन करती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है? इक्वल टू डाला, तब फ्रूट्स है इक्वल टू फ्रूट्स J, तब मे बी
फ्रूट्स आई प्रिंट कर दिया, i+1 कर दिया, if not equal print it, else और फिर पॉइंटर वही रखो, i इज इक्वल टू 0 पे, j को एप्पल से कंपेयर करो, इक्वल आ गया, डोंट प्रिंट, एंड देन आई थिंक ये क्वेश्चन में प्रिंट स्टेटमेंट लगाने के कारण दिस वोंट वर्क। हाँ, मैं कंपाइल में कर दूंगी, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने क्वेश्चन भी सही लिया है या नहीं, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल जस्ट से फ्रूट साइज नॉट इक्वल टू एप्पल देन प्रिंट इट, और इफ नॉट इन, लेट गिव मी 2 मिनट्स गाइस, मैं ट्राई रन करती हूँ देन आई विल टेल यू, ठीक है। ओके, सो नहीं, वी डोंट नीड टू क्रिएट न्यू लिस्ट, द ओनली कंडीशन है यहाँ पे कि, ठीक है, मैं यहाँ गलत जा रही थी, राइट, तो मेरी लिस्ट ये नहीं है, माई लिस्ट शुड बी ऑलवेज इन सॉर्टेड मैनर, to remove duplicates using two pointer approach, list should be in sorted manner, और ये क्वेश्चन में दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना कि ये तुम्हें खुद से सोचना है, खुद से सॉर्ट करना है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन में दिया होगा, हमने शायद कल किया भी था रिमूव डुप्लीकेट्स वाला क्वेश्चन, राइट, बट उसमें वी वर मूविंग the values and we were returning the updated list, यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, यहाँ पे we are just printing the values, right? So हमारी लिस्ट सॉर्टेड है, इट सेज एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी एंड पपाया, राइट, सो अब मैंने कोड यही लिखा, ड्राई रन करते हैं कोड को, व्हाट्स द कोड दैट आई विल राइट, ठीक है, तो राइट, तो मैंने आई हैव सॉर्टेड, आई हैव kept my one iterator i0 here and j here, right, और लेट्स से बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये थोड़ा सा रिमूव डुप्लीकेट्स जैसा ही है, एंड अगेन इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मैंने दोनों पॉइंटर मेरे यहीं रख दिया है, आई एंड जे बोथ एट 0th पोजिशन, आई रन द लूप फॉर जे इन रेंज n, right, what is my n, my n is length of fruits equal 0 and j equal
वन, राइट? इधर इधर यू कैन डू इट लाइक दिस कि जे को वैल्यू को वन ले लो एंड मूव इट टिल रेंज, अरे यार, माय स्क्रीन इज स्टक क्या गाइस? आई एम नॉट एबल टू यूज पेंसिल, माय स्क्रीन इज स्टक, स्क्रीन स्टक हो रही है क्या मेरी? Give me a second. Let me reshare. I think I'm not able to use pen. Okay. Yeah, right. ठीक है. So I take it j as one and move it till length plus one. Okay, my God. Right? And now my condition is if my fruits I is not equal to fruits j, then print and another condition is मैं ड्राई रन करूंगी तो कोड समझ आ जाएगा. If j minus I equal 1, print fruits I, print fruits I, and increment my pointer just making I is equal to j, or you can also write I plus equal 1. Both things are same. ठीक है? अब इसको ड्राई रन करते हैं. कोड को छोड़ दो, ड्राई रन करते हैं. एप्पल, बनाना, sorry, list is sorted. It's apple, banana, cherry, and papaya, right? So first iteration में कोड समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बस ड्राई रन देखो. ठीक है? My I is equal to 0, j equal 1, this is equal, condition is not true, nothing will happen, right? Second iteration में अभी आई इंक्रीज नहीं हुआ है बिकॉज कंडीशन ट्रू नहीं थी. कंडीशन क्या थी हमारी? फ्रूट्स आई शुड नॉट बी इक्वल टू फ्रूट्स जे, राइट? दिस इज द मेन कंडीशन जो आप लोगों को सोचनी है टू पॉइंटर अप्रोच में. और ये कैसे समझ में आएगी? सिर्फ ड्राई रन करके आती है. मुझे सिर्फ और सिर्फ ड्राई रन करके कंडीशन समझ आती है. मेरे दिमाग में जितनी भी कंडीशन आ रही होती है मैं सब पे ड्राई रन करती हूँ. आई फाइनलाइज वन ऑफ देम, राइट? Second iteration is I is equal to 0 because we didn't increase I. J is equal to 2. Compare I equal to 0 पे एप्पल है, J equal to 2 पे बनाना है. Condition is satisfied. We will print apple and increment I by 1.
थर्ड आइटरेशन में I इक्वल 1 है, J इक्वल 3 है, I at 1 is apple, J is 3 is cherry. हम प्रिंट क्या करा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए हमें। J 2 है, हमने I प्रिंट कराया, राइट? I को 1 इंक्रीज कर दिया। नाउ I is equal to 1 है। समथिंग इज रॉन्ग अगेन। गलत हो गया यहाँ पे, ये कंडीशन गलत हो गई। अच्छा कैसे गलत हुई? ठीक है, मैं ड्राई रन कर रही थी, अब ड्राई रन करते करते मेरे को क्या पता चला, आई एम प्रिंटिंग आई। अच्छा ठीक है मैम, बट हाउ? ठीक है, मुझे मुझे एक चीज बताओगे, यहाँ पे ये कंडीशन गलत कैसे हुई? अगर किसी को ड्राई रन समझ आया यहाँ तक, आई 0 और 1 इक्वल था, हमने कुछ नहीं किया, नथिंग विल हैपन। आई की वैल्यू हमने इंक्रीज नहीं करी, 0 रही। जे की वैल्यू हमने इंक्रीज करी, 2। एंड हमने एप्पल प्रिंट कराया। एप्पल कैसे प्रिंट कराया हमने? फ्रूट्स आई प्रिंट करा रहे हैं हम। अब थर्ड आइटरेशन में ये वैल्यू गलत कैसे हो गई? ये अजम्पशन कैसे गलत हुई, कोई बता सकता है? यस यस, हम एप्पल प्रिंट कर रहे हैं दोबारा। पता चल रहा है ये कि एप्पल प्रिंट हो जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि आई 1 पे एप्पल है, जे 3 पे चेरी है, दोनों इक्वल नहीं है, हम फिर से एप्पल प्रिंट कर देंगे, राइट? एंड दिस शुड नॉट हैपन। ओके, व्हाट इफ ये गलत हो गई, ये assumption रिजेक्टेड? समझ आया ना कि ये assumption काम नहीं करेगी। यस, बनाना प्रिंट होना चाहिए था, पर प्रिंट हो रहा है एप्पल। ठीक है, अब तो दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं इसको कैसे रिजेक्ट करूंगी। ओके, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया, बट नॉन आईटी पीपल, तुम लोगों को ये, हाँ, सी अनमोल कम से एप्पल चेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ओके, ठीक है, तो मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या assumption लगाई और क्या हुआ और कहाँ हम गलत हैं, राइट? हम गलत assumption को देखते हैं, ठीक है? एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी, पपाया। अनमोल, सूरज, एवरीवन, नॉन आईटी पीपल, एक ये लिस्ट है, ये पता चल रहा है ना? दिस इज द लिस्ट, राइट? हाँ हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। ये एक लिस्ट है हमारे पास, फ्रूट लिस्ट। ये फ्रूट लिस्ट है, ये पता चल रहा है ना? भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, वापस करते हैं। एप्पल, एप्पल, बनाना, चेरी, पपाया, फ्रूट लिस्ट है। क्वेश्चन क्या है? प्रिंट यूनिक फ्रूट्स यूजिंग टू पॉइंटर। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ आ रहा है? हमें सिर्फ यूनिक फ्रूट्स प्रिंट करने, दैट इज एप्पल, बनाना, चेरी, पपाया, ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन समझ आया कि एक लिस्ट है, लिस्ट में हमें
यूनिक फ्रूट्स प्रिंट करने हैं यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच, टू पॉइंटर्स लगाने हैं हमें। यहाँ तक आई थिंक समझ आया, राइट? कूल। अब टू पॉइंटर अप्रोच लगाने के लिए हमें क्या चीजें सोचनी है? आई और जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फॉर लूप टिल वेयर वी नीड टू रन फॉर लूप, राइट? ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो इधर, J I will start from this and will compare these two things and see कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब मैं प्रिंट करूं। ये कुछ मोटा मोटा मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, मैं कोड पाइथन कंपाइलर में लिखूंगी। तुम लोगों को ये बात समझ आ रही है कि मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है कि मैं एक पॉइंटर यहाँ रखूंगी, एक पॉइंटर यहाँ रखूंगी, दोनों को कंपेयर करूंगी। अगर दोनों इक्वल नहीं है तभी आई विल डू समथिंग समथिंग थिंग्स। यहाँ तक समझ आया? इतना तो सबके दिमाग में आ रहा होगा। से यस और नो। से यस और नो। आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, हेवी हो गया है, बट बस ये सीख लेते हैं, ठीक है? फिर बंद करेंगे। या कुछ कुछ इतना समझ आ रहा है कि जब तक हम दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे, हम जब तक इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक वी वोंट बी एबल टू प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स। इतना तो समझ आ रहा है सबको, राइट? ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मेरे को अगल-बगल वाले लाइक वन आफ्टर द अनदर एलिमेंट कंपेयर करने हैं, नेबर्स कंपेयर करने हैं, तो मैंने एक पॉइंटर मेरा 0 पे रख लिया, एक पॉइंटर मैंने 1 पे रख लिया, राइट? मेरा ड्राई रन गलत कहाँ हुआ था ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एक कंडीशन ऐड करते ही वो ड्राई रन सही हो जाएगा। नाउ मैं ड्राई रन करती हूँ, बहुत सिंपल है। कंडीशन क्या है मेरी? अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब आई विल इंक्रीज आई एंड विल प्रिंट माय वैल्यू। ठीक है, कंडीशन सबको समझ आ गई? एंड ये समझ आ गया कि मेरे आई इंक्रीज मैं तब करूंगी जब मेरी दिस कंडीशन दैट फ्रूट्स एट आई इज नॉट इक्वल टू फ्रूट्स एट जे, तभी आई विल प्रिंट वैल्यू। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो तुम्हें प्रिंट ही नहीं करना ना कुछ। दैट्स व्हाट इट इज। फर्स्ट आइटरेशन, सॉरी। फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या है? 0। जे की वैल्यू क्या है? 1। फ्रूट्स एट 0th पोजीशन क्या है? एप्पल। फ्रूट्स एट फर्स्ट पोजीशन क्या है? एप्पल। इक्वल हो गए, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। एग्री कर रहे हैं सब यहाँ तक कि फर्स्ट आइटरेशन में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट? यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। कूल। तो हमारा आई कुछ कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड एंड वी मूव्ड फॉरवर्ड।
राइट। अब मेरा आई का वैल्यू 0 है, जे इज 2। कूल। Fruit at 0th position was apple. Fruit at second position was banana. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कुछ तो करना है, बट व्हाट? यहाँ पे गड़बड़ कर रही थी मैं गड़बड़ कहाँ कर रही थी? मैं बोल रही थी कि मैं प्रिंट कर दूंगी फ्रूट सीधा, एंड आई विल इंक्रीज आई बाय 1। राइट, तो मेरा एप्पल प्रिंट हो गया, विच इज एक्सपेक्टेड एंड करेक्ट। सेकेंड आइट्रेशन में समझ आया कि अब थर्ड आइट्रेशन बहुत ध्यान से देखना, मेरा ड्राई रन गलत होने वाला है। आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि आई प्लस प्लस कर दिया था, एप्पल प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आई की वैल्यू थी 1 पे एप्पल, 3 थी चेरी, मैंने फिर से एप्पल प्रिंट कर दिया। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, आई डायरेक्टली प्रिंट द फ्रूट। नाउ पहले भी एप्पल था, फिर से एप्पल था, मेरा तो आउटपुट गलत हो गया। एग्रीड। मेरा ड्राई रन कहाँ गलत हुआ, सबको समझ आया? अरे वही तो समझा रही हूँ कि मैंने गलत अप्रोच ली वैभव। माय अप्रोच इज स्टिल रॉन्ग। मेरे को ड्राई रन करके पता चल गया कि मेरी अप्रोच गलत है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोगों को कैसे पता चलेगा तुम्हारी अप्रोच गलत कैसे है। और मैंने सीरियसली फर्स्ट टाइम पे यही सोचा था कि इफ माय फ्रूट इज नॉट इक्वल टू, आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई विल जस्ट डायरेक्टली प्रिंट और मेरा काम बन जाएगा, बट नहीं बना। माय ड्राई रन इज रॉन्ग, माय ड्राई रन टेल्स मी कि योर अप्रोच इज रॉन्ग शिवाली। राइट। समझ आया? जस्ट टेलिंग यू कि अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, नाउ व्हाट डू आई डू डिफरेंटली? अब इसी ड्राई रन को ध्यान से सोचते हैं। यहाँ तक एप्पल प्रिंट हुआ, परफेक्ट था। व्हाट इफ आई मेक, इंक्रीमेंट करने की बजाय, आई प्लस प्लस करने की बजाय, व्हाट इफ आई डू आई इज इक्वल टू जे? ये लाइन हटा के मैं लिखूं कि इफ माय कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन आई विल डू आई इज इक्वल टू जे। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 2 हो गई 1 की जगह, यहाँ पे 2 हो गई। Now banana is not equal to cherry and it will print banana. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मैंने फिर आई को जे बना दिया, तो मेरी आई की वैल्यू अगली आइट्रेशन के लिए हो गई 3। यहाँ पे सही हो गई टैरन? अच्छा, आगे पूरा पूरा लेट मी ट्राई टू डू इट पूरा। आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 4, 3 पे चेरी है, 4 पे बना पपाया है, वैल्यू फिर से मैच नहीं हुई, कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, चेरी प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 4 हो गई। नाउ आई इज इक्वल टू 4, थिंक केयरफुली, ये मेरी लास्ट आइट्रेशन है। जे इज इक्वल टू 5, चेरी इज नॉट इक्वल टू पपाया, 0 1 2 3 4। ओके। अच्छा, अब यहाँ क्या गलत हो रहा है? कैन एनिमल टेल कि क्या हो रहा है? हमारे पास J5 है ही नहीं।
Yes, index ends at 4. It will tell us index out of error bound. राइट, राइट, एवरीबॉडी गॉट राइट। ठीक है, अब इसको इसको कोड करके देख लेते हैं कि क्या ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर देता है? इफ रूट्स I not equal roots J print। ओके, मेरे को इसको एप्पल, बनाना, चेरी, पपाया, वो हटा दो। राइट, प्रिंट फ्रूट्स I और I इक्वल J। दिस इज व्हाट द कोड वाज राइट। यही यही कोड पे मैं ड्राई रन कर रही थी। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करती हूँ। मेरा पपाया तो प्रिंट हुआ ही नहीं। नाउ व्हाट? एवरीवन यू एवरीवन इज करेक्ट। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आता है, थ्रो नहीं कर रहा है, ये वो बात अलग है, बिकॉज़ उन्होंने हैंडल कर रखा है। एवरीबॉडी इज करेक्ट। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इसको +1 तक चला दूँ तो? अच्छा, अब ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे रहा है मेरे को, राइट? सो ये भी सॉल्व नहीं कर रहा मेरा एरर। Now what I need to do? If I say j equal n and or uh, uh, क्या आउटपुट? हम सॉर्टेड लिस्ट पे लेके चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन अश्मीत ये बोल रहा है कि वी हैव सॉर्टेड लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, अब इस कोड को बहुत ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, मेरी बस लास्ट वैल्यू प्रिंट हो रही थी। ऑल्सो मेरे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ रहा था क्योंकि उसको फिफ्थ फिफ्थ इंडेक्स मिला ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो आई जस्ट टोल्ड कि लास्ट वैल्यू मैन्युअली प्रिंट कर दो, कि इफ j is equal to length of list num, then directly print it and move I equal to j। सो पहली 3 आइटरेशन में मेरी फर्स्ट कंडीशन वर्क करेगी, बट मेरी लास्ट आइटरेशन में मेरी पहली वाली कंडीशन वर्क करेगी, एंड इट विल प्रिंट माय वैल्यूज। ठीक है, आई थिंक ये ड्राई रन करके और क्लियर होगा कि मैंने क्या किया। ए से कोई वर्ड होता है एप्पल से पहले, तो भी ये वर्क करता। ट्राई करके देखो। तो हमारी बात पहली बार में हमारी कंडीशन सैटिस्फाई होती, एंड चीजें चलती। अच्छा, अब ना तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो कि क्या करना है। मैं ये कोड भेज रही हूँ इन चैट। अभी कुछ चैट में मत लिखना प्लीज। ठीक है, ये कोड है। आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स। वन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, अनदर इज ये वाला जो अश्मीत ने बोला कि लेट्स सपोज एप्पल से पहले एक और फ्रूट होता, एप्रिकॉट, जो मैंने डाल दिया है। दोनों एग्जाम्पल्स पे इस कोड को ड्राई रन करोगे, ये होमवर्क है। दोनों एग्जाम्पल्स पे कोड को ड्राई रन करो, कॉपी पेन में लिखो। कल या नेक्स्ट क्लास में आई विल कॉल समबडी ऑन स्टेज एंड विल आस्क कि
ड्राई रन करके दिखाओ क्वेश्चन को, ठीक है? ऑल्सो टू पॉइंटर अप्रोच का एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ होगा तुम्हारे साथ, उसको थॉरोली रीड करके आना। फिर हम लीड कोड पे मूव करेंगे। गॉट इट? समझ आ गया? ड्राई रन करना हेल्पफुल लगता है ना? से येस और नो इन द चैट। चले गए क्या क्लास छोड़ के सब? हेलो, एम ऑडिबल गाइस? लैग हो गया था। कूल, तो आई थिंक होमवर्क क्लियर है सबको, राइट? कि कोड है? कोड का अ, मैं ये डिस्कॉर्ड पे भी डाल देती हूँ। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको होमवर्क क्या करना है। तो सूरज, एक बार आई वुड रिकमेंड कि ना कोड को ड्राई रन करो खुद से। आई विल एक्सप्लेन द कोड अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? होमवर्क ये करना है अनमोल, आई गिव यू लिस्ट टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ रूट। इस कोड के अकॉर्डिंग लेट्स ड्राई रन, ठीक है? चलो, ओके गाइस, नो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, बाय। डिस्कॉर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं।